Hello everyone, this is Pratima Jaswal and you are watching my YouTube channel English Junction by Pratima Jaswal. In this video, I'm going to explain you how to change imperative sentences into passive voice and towards the end because we have already covered first and second parts, and this is the third part where I am just going to end it. So towards the end I'll give you some exercises to do on your own and check their answers. So let us start with this. This is part 3, and okay, as I'm just going to take this imperative sentences. And what is an imperative sentence? An imperative sentence is a sentence that gives the reader an instruction or makes a request or issues a command. An imperative sentence doesn't have a subject. Main thing about imperative sentence is that it doesn't have a subject. So this is a command or a request, okay, or an instruction and advice. So the structure of solving imperative sentences is, we always use in imperative sentences let plus object plus be, or if it is a negative sentence we use not be plus third form of the verb. Let plus object plus be. If it is a negative sentence, then not be plus third form of the verb. For example, always speak the truth. Always is adverb, so we just keep it aside for the time being. Speak the truth. Speak is the verb and the truth is object. Let, first of all, let is there. Then in this, if we fit in this let, and then we have object. What is the object? The truth. Let the truth. And because we have this always adverb, we will write adverb always. Let object plus, of course, adverb is given there, be or not be. This is a positive sentence, be. And third form of the verb speak, spoken. So let the truth always be spoken. Then we have this, do not pluck the flowers. Let the flowers are object, they come here. Let the flowers, do not will change into not be. Do not changes into not be. Let the flowers not be plucked. Do not pluck the flowers, let the flowers not be plucked. And then we have next is help his brother. Help is a verb, his brother is an object. Now this changes, we will take let first of all. In if we try to be fit in this, अगर हम इसमें क्या करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में, अगर हमें इम्पेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना होता है हम लगाते हैं लेट, फिर जो ऑब्जेक्ट दिया होता है वो लगाते हैं प्लस, अगर तो ये पॉजिटिव है बी, एंड अगर नहीं, अगर नेगेटिव है सो देन हम लोग, अगर नेगेटिव है अभी आपने किया नॉट बी, ओके, एंड दिस इज नॉट बी एंड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ये हमारा एक पैटर्न है. इसमें जैसे हम बोलते हैं हेल्प हिज ब्रदर, हेल्प हिज ब्रदर, हेल्प इज अ वर्ब, हिज ब्रदर इज ऑब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट तो दिया नहीं है. सब्जेक्ट इम्प्लाइड होता है. इम्प्लाइड माने अपने आप हमें समझ जाना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है. जैसे मैंने बोला हेल्प हिज ब्रदर, तो अंडरस्टूड है या सामने कोई है या किसी ना किसी को मैं बोल रही हूँ. गो फ्रॉम हियर, डू दिस, ओपन द डोर. ये चीजें ऐसे बताती हैं जैसे मैं कोई भी एक या ज्यादा लोग जो भी सामने हैं, बीट स्टूडेंट्स या हो सकता है वो स्टूडेंट्स हो या कोई भी, मतलब उनको मैं बता रही हूँ, ठीक है, या कोई अपना फ्रेंड हो सकता है, बच्चा हो सकता है, इट कुड बी एनीवन, बट हम वो इम्प्लाइड आ जाता है, सब्जेक्ट उसमें है. इम्प्लाइड का मतलब अंडरस्टूड है. आप ये सोचिए अंडरस्टूड है इसमें, यहाँ पर इस सेंस में. हेल्प हिज ब्रदर, लेट लगा हमारा, जो कि हमारा एक मेन रूल है. हिज ब्रदर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, इसमें भी बी आ जाएगा. लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, बी क्योंकि पॉजिटिव है, बी एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हेल्प विल चेंज इनटू हेल्प. क्लीन योर रूम, हमारा वही रूल रहेगा. एंड पहले लेट लगेगा, उसके बाद योर रूम, योर रूम, लेट योर रूम, फिर बी, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्लीन्ड. क्लीन का क्लीन्ड बन जाएगा. लेट योर रूम बी क्लीन्ड. नेक्स्ट है हमारा
कि कई बार कुछ एक चेंजेस जैसे हम लोग चेंजेस करते हैं तो ऐसे भी लिखा जाता है, जरूरी नहीं है कि हर जगह हम लोग लेट यूज करें. इट्स नॉट नेसेसरी टू यूज लेट एवरीवेयर. समटाइम्स इन सम ऑफ द सेंटेंसेस we use let, or the other way of saying, if it is a request, then we say you are requested to. If it is suggestion, then we say it you are suggested to. If it is a command, then we say you are commanded to. If it is these type of, but it's not necessary, it could be made using either ways. Either we say, ये किसी भी तरीके से बन सकता है, या तो चाहे हम लेट लगा के बनाए, या हम यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर कमांडेड टू, यू आर ऐसे करके भी बना सकते हैं. अगर सजेशन है, यू आर सजेस्टेड टू. आगे देखिए, ये है हमारा इफ इट कंटेन्स एन ऑर्डर और अ कमांड. ऑर्डर है या कमांड है, यू आर ऑर्डर्ड टू या यू आर कमांडेड टू. अगर रिक्वेस्ट है, यू आर रिक्वेस्टेड टू. अगर ये एडवाइस है, यू आर एडवाइज्ड टू. आगे, अगर ये नेगेटिव ऑर्डर है, नेगेटिव ऑर्डर कि डोंट डू दिस, ठीक है, इस या तो यू आर फॉरबिडन टू, या हमने अभी किया है जैसे नॉट टू, है ना, सॉरी नॉट लग जाता है बी के साथ, आई एम सॉरी. सो जैसे हमने अभी किया था कि नॉट बी, ऐसे करके नॉट बी, या तो ऐसे करेंगे या यू आर फॉरबिडन टू, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं. अगर हमारे पास लेट अस सेंटेंस बनाना हो तो वी ऑलवेज राइट इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड. या हम ऐसे लिखेंगे या लिखेंगे इट इज प्रपोज्ड दैट वी शुड. प्रपोजल है, लेट अस, हम ऐसा करते हैं प्रपोजल. इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड या इट इज प्रपोज्ड दैट वी शुड. आगे है हमारा इट इज टाइम टू, फॉर एग्जाम्पल इट इज टाइम टू डू दिस वर्क, ऐसे करके कुछ भी. इट इज टाइम टू सिंग अ सॉन्ग, इट इज टाइम टू कंप्लीट आवर वर्क, कुछ भी. तो ऐसे में उसका पैसिव वॉइस बनाना हो, इट इज टाइम फॉर. फॉर क्या, जो ऑब्जेक्ट है, सपोज वो लग जाएगा पहले टू बी लगाकर फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. जैसे मैं ये कहती इट इज टाइम टू डू दिस वर्क, तो इट इज टाइम, दिस वर्क इज द ऑब्जेक्ट, इट इज टाइम फॉर दिस वर्क टू बी, डू की जगह डन, थर्ड फॉर्म आ जाएगी, वो आगे हम करेंगे ना. पैसिव वॉइस चेंज करने के कुछ एक रूल्स हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. जैसे शट द डोर, लेट से लगाएंगे, लेट द डोर बी शट, let the door be shut. Post the letter at once. There are again, ऊपर वाला भी हम ऐसे कर सकते थे, या तो let the door be shut लगाएं, या दूसरा वे है it seems to be an order. ऑर्डर लगता है, you are ordered to shut the door. या हम अब सेकेंड है जैसे post the letter at once, हमें यही लगता है कि ये ऑर्डर है, या तो लगाएंगे you are ordered to post the letter at once. एक तो इसका वे ये वाला हो जाएगा, you are ordered to post the letter at once. Letter at once. या इसका सेकेंड वे बनेगा लेट से बनाते हैं, लेट द लेटर, ऑब्जेक्ट आ जाएगा द लेटर, लेट द लेटर, फिर बी आता है हमारे उस फॉर्मेट, लेट आता है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी, उसके बाद लेट द लेटर बी पोस्ट की थर्ड फॉर्म पोस्टेड, लेट द लेटर बी पोस्टेड एट वंस. ठीक है. नेवर टेल अ लाई, नेवर टेल, never be told, never tell a lie, है ना, let a lie never be told. So आगे है us go to market, हमने अभी लेटेस्ट वाला बनाया था एंड आई टोल्ड यू, उसमें मैंने आपको ये बताया है सजेशन लिखना है ये. सो इट इज सजेस्टेड
It is suggested that we should go to market. जब हम लेटस वाले बनाते हैं तो हम इट इज सजेस्टेड दैट या इट इज प्रपोज्ड दैट लगा करके, उसके बाद अगर लेट अस है तो वी आएगा और शुड आएगा, यहां तक इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड तक ये हमारा पैटर्न रहेगा। उसके बाद गो टू मार्केट, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड गो टू मार्केट। लेट अस रिवाइज आवर लेसन्स, लेट अस की जगह इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड रिवाइज आवर लेसन्स, फिर ऐसे बन जाएगा। इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, लेटस की बजाय इतना सारा ये आ गया, रिवाइज आवर लेसन्स उसके साथ लिख दिया। इट इज टाइम टू सबमिट आवर प्रोजेक्ट, अब हम इसकी बात करते हैं। तो इट इज टाइम टू सबमिट आवर प्रोजेक्ट, सो इट इज टाइम फॉर, इट हम लगाएंगे इट इज टाइम फॉर, इट इज टाइम फॉर, किस चीज के लिए टाइम है? फॉर आवर प्रोजेक्ट it is time for our project to be और submit की थर्ड फॉर्म आ जाएगी submitted, है ना। it is time for our project to be submitted। जैसे it is time to bake the cake, अब आ जाएगा it is time for, किस चीज के लिए? the cake, it is time for the cake to be baked, it is time for the cake to be baked। अच्छा, कुछ वैसे एग्जाम्पल्स हैं आपके लिए, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस। जैसे प्लीज डू मी अ फेवर टुनाइट, प्लीज है, रिक्वेस्ट है, सिंपल, यू आर रिक्वेस्टेड, जहां भी प्लीज आ जाए यू आर रिक्वेस्टेड टू, बाकी वही है डू मी अ फेवर टुनाइट। आगे है गेट आउट ऑफ माई हाउस, ये ऑर्डर है, गेट आउट ऑफ माई हाउस, गेट आउट ऑफ माई हाउस, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट ऑफ माई हाउस। आगे करते हैं हम, काइंडली डू नॉट स्मोक इन पब्लिक प्लेस, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू स्मोक इन पब्लिक प्लेस। कुछ सॉल्व करते हैं, प्लीज गिव मी सम मनी, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी सम मनी, ठीक है, सम ये क्या हो रहा है, रुको, some money, okay। now next, fetch me a glass of water, लगता है कि ये ऑर्डर है, so you are ordered to fetch me a glass of water, fetch का मतलब होता है जाकर कोई चीज लाना। now next is प्लीज टेक पिटी ऑन हिम, अगेन ये प्लीज का बन जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक पिटी ऑन हिम, मैं लिख नहीं रही, आई थिंक क्लियर है। यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज की बजाय यू आर रिक्वेस्टेड टू, बाकी टेक पिटी ऑन हिम। नेक्स्ट, गो टू मार्केट इमीडिएटली, ये ऑर्डर लगता है, गो टू मार्केट इमीडिएटली, सो यू आर ऑर्डर टू गो टू market immediately। now next, so now I have this some exercises, अपने आप को पॉज करके काइंडली अपने आप सॉल्व करो। जैसे ये वाला आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वॉइस, इसमें आप सॉल्व करके देखो एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, कौन से वॉइस है, एंड दिस इज द आंसर। जब आप पॉज करोगे फिर आंसर मिला लेना। अगेन सम वन एक्सरसाइज, आप ये क्वेश्चंस के आंसर्स लिखो, स्टॉप कर दो वीडियो, उसे लिखने के बाद फिर आप ये आंसर्स टैली करना। फिर ऐसे ही आप ये चेंज द वॉइस, एक्टिव टू पैसिव वॉइस, एक्टिव टू पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए भी आप ये दीज आर 10 सेंटेंसेस, जब आपके ये कंप्लीट हो जाए पॉज कर लो, उसके बाद आंसर्स टैली करो। फिर ये 11 to 20, मेरा पर्पस सिर्फ आपको एक अच्छी प्रैक्टिस देना है,
ताकि आप इसे कर सकें, एंड देन यू जस्ट चेक इट विद योर सेल्फ, एंड इन केस ऑफ डाउट्स यू कैन इवन राइट टू मी. अगला ये प्रैक्टिस करके आप इनके आंसर्स बाद में टैली कर सकते हो. ठीक है. अच्छा, देन वी हैव नेक्स्ट 21 to 30 जो भी हमने किया हुआ है और उसके आंसर्स हैं, आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हो. सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, एंड thank you very much for watching my video. If you like my video, kindly like, share and subscribe. Thank you very much.